Tensum Opao company. Distinguish the difference between management buyout and management buy-in, and discuss why Opao's board of directors might have sold Burgett company through a management buy-in. A management buyout. In the management buyout, involves the purchase of the company by the management who is running the company itself. And management buyout, and management buy-in refers to a phase in which the company, uh, एक मिनट, management buy-in refers to the management buy-in refers to the term in which the company is purchased by a management which has been brought by a third party or brought in the aspect of a third party. In management buyout में क्या रहता है? See again, in management buyout, the managers or the management team itself know about the various actually knows about the depth of the company, and management buy-in के अंदर the other management might not have such a detailed information about the company. ये बोल सकते हैं. एक्चुअली मैनेजमेंट, अच्छा हमने क्या सिलेक्ट किया? हमने मैनेजमेंट बाय इन सिलेक्ट किया. बाय द वे, हमें मैनेजमेंट बाय इन शायद इसलिए सिलेक्ट किया हो सकता है बिकॉज शायद करंटली ऐसे कोई फ्रेश आइडियाज नहीं होंगे मैनेजमेंट बायआउट वाले वाले लोगों के पास, यानी कि हमारे इंटरनल मैनेजर्स के पास शायद कोई ऐसे फ्रेश आइडियाज नहीं होंगे, फ्रेश प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, शायद वो कैश रिजर्व्स अवेलेबल नहीं होंगे जो एक्चुअली मैनेजमेंट बाय इन में अवेलेबल होंगे. ठीक है ना? तो ये हो सकता है. और क्या हो सकता है, इनका एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं. Around 7 years ago, Opao Company, a private conglomerate company involved in many different businesses, decided to obtain a listing in a recognized stock exchange by offering a small proportion of its equity shares to the public. Before the listing, the company was owned by around 100 shareholders who were all closely linked to Opao and had their entire shareholding wealth invested in the company. However, soon after the listing, these individuals started selling their shares in Opao and investing उन्होंने sell करना चालू कर दिया in Opao. And over the 2 year period after the listing, the ownership structure changed to one of many diverse individual and institutional shareholders. As a consequence of this change in ownership structure, Opao Company's board of directors commenced an aggressive period of business reorganization through portfolio and organizational restructure. This resulted in Opao changing from conglomerate company to a company focusing just two business sector. Okay. So a conglomerate company is like a मतलब वो कैसे रहता है वो टाटा, like वो टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स से अलग अलग जो एक एक कंपनी जो अलग अलग सेक्टर्स में अपनी छाप छोड़ती है वो. अभी ये क्या हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस से ये सिर्फ दो बिजनेस सेक्टर्स पे आ गए. कौन से? फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फूड मैन्युफैक्चरिंग. द फाइनेंशियल प्रेस रिपोर्टेड दैट ओपाओ had been forced to take this action because of the change in the type of shareholders. अच्छा, तो देखो शायद मैनेजमेंट बाय इन के वजह से मैनेजमेंट बाय इन जो हुआ है वो शायद बिकॉज ऑफ फोर्सफुल क्या बोलते हैं कंसिडरेशंस गिवन बाय शेयर होल्डर्स, इसके वजह से हुआ है, या फिर फोर्स अप्लाइड बाय द शेयर होल्डर्स, इसके वजह से हो सकता है. The equity market seemed to support this action, and the Opao share price has grown strongly during this period of restructuring. After growing very slowly initially, Opao recently sold a subsidiary Burgett company through a management buy-in. Although it has, ये देखो ये हमारा क्वेश्चन आ गया. Although it also had an option to dispose of Burgett through management buyout. In a statement, Opao Company's board of directors justified this by stating that Burgett Company would be better off being controlled by the मैनेजमेंट बाय इन टीम. अच्छा, बेटर कंट्रोल्ड इन्होंने बोला, तो बेटर कंट्रोल मतलब उनके पास स्किल्स और एक्सपर्टीज थे जो मैनेजमेंट बाय आउट यानी कि हमारे खुद के शायद मैनेजमेंट के पास नहीं थे. ओके. Opao is now considering acquiring Thai company and details of the proposed acquisition are as follows. ठीक है. तो बेसिकली ये भी हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट बाय आउट के टाइम पे मैनेजर ने शायद ज्यादा पैसे मांगे होंगे rather than मैनेजमेंट बाय इन के टाइम पे.
ऑल्सो शायद ये भी हो सकता है कि बिकॉज मतलब मैनेजर्स को पता था उनके खुद के एक्सपर्टीज के बारे में, एंड मैनेजमेंट को पता था कि खुद की मतलब वो लोग खुद कितना इनपुट डाल सकते हैं। इसलिए शायद उनको लगा कि हम उतना इनपुट शायद डाल नहीं पाएंगे, शायद हम उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे इस कंपनी के लिए, शायद हम लोग उतना कैसे बोलूँ मैं, हम शायद उतने और शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बर्गेट कंपनी इतनी कोई खास कंपनी हो भी ना, ये शायद मैनेजर्स को ऑलरेडी पता हो, सो दैट्स व्हाई दे डिड नॉट शो दैट मच इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट बाय आउट, whereas in management buy-in whereas in management buy-in the other teams managers or the outside managers thought that okay, maybe this is a good investment opportunity because we have the expertise to build this company up, ऐसा ये हम बोल सकते हैं। हम्म। तो हमने दो पॉइंट्स बोले, एक तो फाइनेंस अवेलेबल और दूसरा एक्सपर्टीज अवेलेबल। तीसरा इंटरनल मैनेज को पता होगा, ठीक है ना, तो ये तीन तीन पॉइंट्स हमने एटलीस्ट बोले। चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, 10th। दिस विल बी वेरी अप। Management buyout involves purchase of a company by management running that company. Management buyout involves purchase of a company by management running that company. Hence, Burget's current management team would be buying Burget from Opao. A management buy-in involves selling Burget to a management team brought in from the outside of the company. So, हमने बोला था third party, but outside from the company is also fine. अभी Opao company may have sold Burget through an MBI for the following reasons. हम लोग पूरा लिखेंगे। Opao company's board of directors may have felt that Burgate company's current management team, hmm, Opao company's board of directors might have felt that the Burgate's current management team lacked fresh ideas, strategies, which could have driven Burgate company forward successfully. Hence, it may have felt that a fresh team with skills and expertise gained externally would have had the required innovative ideas and skills. It may be that the external team of managers may have had the finance available to move quickly। तो फाइनेंस पैसों की भी बात हो गई और फ्रेश आइडियाज और एक्सपर्टीज की भी बात हो गई। इधर हम प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं कि शायद अलग अलग प्रोजेक्ट्स इनकर करके हम लोग बर्गर कंपनी को और अच्छा बना सकते थे। Whereas internal team of managers may not have the finance in place to purchase Burger company at that time. It is also possible that the management teams with Burger company and Opao company had disagreements in the past, and Opao company's board of directors may have believed that the two management teams would not be able to work together in the future if needed. Thus, the board of directors may have felt that a fresh management team was the better option going forward. अच्छा इतना ही था, ओके फाइन, गुड आंसर, टू द पॉइंट। नेक्स्ट, पांच हो गए अभी। एक्सप्लेन व्हाट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व एंड डिस्कस पॉसिबल रीजंस व्हाई चेंज इन द टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स may have made Opao company change from being a conglomerate to focusing on just two business sectors. Hmm. इसमें है पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग। एक्सप्लेन व्हाट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व। अच्छा पहले इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन के ऊपर। एक्सप्लेन व्हाट पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व्स। व्हाट आई फील इज पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग एज अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स इन हाउ मेनी companies I have to invest and which companies I have to invest. If not that, then also the fact that how my current finance has been how my current फाइनेंस हैज बीन मेड, मतलब कितना proportion इक्विटी का है, कितना proportion डेट का है, ऐसा। so this both can come in portfolio restructuring, and also the fact that in how many companies and in which, how diversified my investment in
कंपनीज आर, मैं सिर्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं कर, मतलब वो कर सकता। आई हैव टू इन्वेस्ट इन फूड मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, मोटर कंपनीज, टेक्सटाइल्स, एक्सेट्रा, so as to diversify the portfolio. And also I have to diversify the portfolio in terms of equity, debt, um, and और क्या हो सकता है, बैंक लोन्स, it's actually the same thing, debt मतलब बैंक लोन्स ही, but preference shares maybe, etc. ठीक है ना? This is portfolio restructuring. Organizational restructuring is just changing the culture of the organization, or changing the top tiers of the organization, tier structure change करना, just the way we behave, just the business operations में कोई change लेके आना, that is organizational and restructuring behavior में changes लाना. Now we come down to why the change in type of shareholders may have made Opao change from being a conglomerate to one focusing on just two business sectors. ये थोड़ा ट्रिकी है. हम्म. पहले फर्स्ट ना हम लोग ये क्लैरिफाई कर देते हैं. फर्स्ट वी विल जस्ट क्लैरिफाई दैट देर आर डिफरेंट categories of shareholders, like equity shareholders who are only focused on profit maximization, some shareholders which are short term and long term, कि मैं लॉन्ग टर्म कंपनी की ग्रोथ चाहता हूँ एंड मैं कई बार छोटे छोटे डिविडेंड्स चाहता हूँ. There can be shareholders which is like government involved हो सकती है अपने subsidized loans देके. There can be uh, environmentalists, or sorry, environmental pressure groups, that's a better word. ऐसे सारे shareholders हो सकते हैं. These are the various categories of shareholders can get involved. अब may have made Opao change from conglomerate to just one, focusing on just two business sectors. इसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? The shareholders may have thought that the company was not doing its job well as when it was a conglomerate, and thus because of being a conglomerate, it was um, exposed to various varieties of risks, as there were various businesses involved, because of which the profits, or maybe the returns were getting क्या बोलते हैं वो netted, कि एक सेक्टर में लॉस हो रहा है, दूसरे दूसरे सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है, सो बिकॉज ऑफ विच वो नेट हो रहा है. ठीक है ना? ठीक है, वो हम बोल सकते हैं. 6 मार्क्स से तो ज्यादा नहीं बोलना है. आई थिंक एक दो और पॉइंट्स मिल जाए तो शायद ज्यादा बेटर होता. By focusing on just two business sectors, the risk has reduced, because of which the cost of capital has reduced. Because of the reduction in cost of capital, there has been an increase in the returns. ये शायद हम बोल सकते हैं, मे बी. देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे भी. देखते हैं. सबसे पहली बात तो हाँ, ये इतना तो जस्ट थियोरी है, जस्ट रैंडम शिट थियोरी. Portfolio restructuring involves the acquisition of companies or disposal of assets, business units, and or subsidiary companies through divestments, mergers, demergers, sorry, spin-offs, MBOs, and MBIs. Organizational restructuring involves changing the way a company is organized. This may involve changing the structure of divisions in a business processes, and other changes such as corporate governance. ठीक है? This may involve changing the structure of the divisions in businesses, business processes, and other changes such as corporate governance. अभी अ, और क्या हो सकता है? ये सब तो थियोरी हो गया. अच्छा, बाय द वे, हमने पोर्टफोलियो में क्या 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 बता, मेरी कंपनी एक तो कैसे कैसे डाइवर्सिफाई हुई, या मेरे कंपनी को फाइनेंस कैसे मिला है, और मैंने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है. तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी पकड़ा है,
एंड नॉट जस्ट दैट, दे हैव आल्सो कवर्ड डिस्पोजल्स, ठीक है ना, दे हैव आल्सो कवर्ड डिस्पोजल्स, डाइवेस्टमेंट्स, डीमर्जर्स, मतलब जो जो निकालने की चीजें हैं ना, लाइक रिमूविंग दैट कंपनी फ्रॉम फ्रॉम योर लिस्ट, उनकी चीजें भी यहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व की हुई है। अभी Opao company is going from a conglomerate business to one focusing on just two business areas, can be seen as restructuring its portfolio. A business, as businesses and assets which are not part of financial services and food manufacturing are disposed of, and the businesses focusing on these areas are acquired. Financial markets may take the view that focusing on food, manufacturing, and financial services has established Opao's senior management to concentrate on areas in which they have expertise, whereas other businesses in which senior management are not experts are disposed of. This activity leads to the maximization of businesses' value, where other businesses in the senior management are not experts are। अच्छा हाँ, ये इन्होंने अच्छी चीज बोली है कि शायद हमारी एक्सपर्टीज नहीं होगी बाकी की एरियाज में, और हमारे सीनियर मैनेजमेंट को उस उतना शायद नॉलेज नहीं होगा, उतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी, इसलिए उनको निकाल देना ही मतलब बेहतर था। ठीक है। Shareholders are interested in maximizing the returns from their investments, बराबर, ये हमने सही चीज बोली, which companies achieve through maximizing business value while is minimizing the risks inherent in their investment activity. Shareholders who are closely linked to a particular business do not hold diversified portfolios and therefore benefit from diversification of risk undertaken by a company. हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो शेयर होल्डर्स है ना, जो शेयर होल्डर्स हु आर क्लोजली लिंक्ड टू वन बिजनेस, दे मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सो दे डोंट माइंड कंपनीज हैविंग अ कॉन्ग्लोमरेट स्टाइल, wherein कैसा होता है कि either the companies can diversify their activities or shareholders can diversify their investments, इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। नाउ शेयर होल्डर्स जो सिर्फ एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, दे डोंट माइंड कंपनीज डाइवर्सिफाइंग द रिस्क, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन ये देखो, on the other hand, institutional shareholders and other shareholders who hold already diversified portfolios would not benefit from a company undertaking risk management through diversification by becoming a conglomerate. Instead, such companies would increase value by focusing on areas in which they have relative expertise, as Opao seems to do. So, Opao's changing ownership clientele has forced it to change its overall strategy. This strategy change was implemented through portfolio restructuring. ठीक है। तो कैसे है कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं या कोई छोटे मोटे जो शेयर होल्डर्स है, वो लोग, दे कैन डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियोज ऑन देयर ओन। आई कैन इन्वेस्ट इन चॉकलेट, आई कैन इन्वेस्ट इन मतलब वो टेक्सटाइल्स, आई कैन इन्वेस्ट इन कॉटन, ईवी, अदर इंडस्ट्रीज, एंड डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो ऑन माई ओन rather than depending on the company. Okay, next question. Done. Done. Prepare a report for the board of directors of Opao, which estimate the value of equity of Opao and TAI before the acquisition and of combined company after the acquisition. So हमको before the acquisition और after the acquisition दोनों निकालना है। Now this is calculation, estimate करना है, तो I think calculation पे ज्यादा focus करते हैं अभी के लिए। Proposed acquisition of TAI company. Thai company is an unlisted company involved in food and manufacturing. Opao Company's board of directors of the opinion that a range of products produced by Thai will fit very well with its own product portfolio.
Opao company's board of directors of the opinion that a range of products produced by Thai will fit very well within its own portfolio. ठीक है. लीडिंग टू क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, न्यू इनोवेशंस एंड लार्ज मार्केट शेयर. तो यहाँ से भी कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के ऊपर डाल सकते थे कि शायद एमबीआई को लगा रहेगा कि क्रॉस सेलिंग नहीं करते तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और एमबीआई टीम विल बी एबल टू डू दिस ऑल थिंग्स मच वेल, ये सब बोल सकते हैं. मतलब दिस इज एक्चुअली एक्विजिशन और ऊपर था डिस्पोजल, बट स्टिल वी कैन से दैट कि एमबीआई टीम मस्ट हैव फाउंड मोर मोर पोटेंशियल इन बर्गेट कंपनी. अभी दो कंपनीज अलग अलग है, दैट आई नो, बट स्टिल the board of directors also thinks that there is a possibility of economies of scale. Proposed acquisition से क्या लग रहा है, economies of scale भी मेरा achieve हो जाएगा, such as shared logistics and storage facilities giving cost saving opportunities. This, the board of directors believes, will lead to significant synergy benefits, and therefore it is of the opinion that Opao should make a bid to acquire Thai company. अभी ये ध्यान देना, हमें ये मतलब वो रिपोर्ट लिखनी है, और इन्होंने मतलब वो रिपोर्ट के पैराग्राफ में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मतलब वो तारीफ की है. सिनर्जी अगर थोड़ी भी हमको अगर यहाँ वहां लगी ना, तो हम सीधा क्रिटिसाइज करेंगे कि ओ, द एस्टिमेट्स और द एक्सपेक्टेशंस वर टू हाई, एंड वेर एज द फाइनेंशियल सिनर्जी और द फाइनेंशियल फिगर्स इन मैथमेटिकल अमाउंट्स दैट वी कैन सी आर क्वाइट लेस, ये सब बोल देंगे. अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ओपाओ कंपनी, ताई कंपनी एंड द कंबाइंड कंपनी. ओपाओ कंपनी हैज 2000 million shares in issue, which are currently trading at 2.5 million each. Hmm, First one, the value of company. हाँ, ये देखो, the value of equity of Opao company and Thai company before acquisition, ये मैंने ऊपर लिख दिया. Particulars यहाँ पे लिख देता हूँ. Now Opao company, Thai company, Thai company टोटल. टोटल वगैरह अभी एक्चुअली ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ये इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, सो आई थिंक टोटल नहीं लिखते. अभी वैल्यूएशन निकालते टाइम हम कैसे निकालते हैं वैल्यूएशन? शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, या फिर शेयर प्राइस. ठीक है ना, मार्केट वैल्यू शेयर प्राइस या फिर शेयर प्राइस, फिर निकलता है वैल्यूएशन. ठीक है ना, ये होता है हमारा फॉर्मूला वैल्यूएशन का. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यूएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर. ठीक है ना. चलो, अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2000 million. अभी मैं इसको 2000 million शेयर्स, तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, ऑल कैलकुलेशंस आर इन मिलियंस. ऑल कैलकुलेशंस आर इन मिलियंस. 2000 मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है ओपाओ की? 2.5. चलो, मिल गया. सेकेंड, टाई कंपनी हैज 263 million shares in issue and a current market value of debt is 400 million. Okay, 263 shares in issue. Current market value of debt is 400 million, and its most recent profit before interest and tax was 132 million. देखना यहाँ पे हमें डायरेक्टली शेयर प्राइस नहीं दिया गया, हमें निकालना है शेयर प्राइस. तो हम कैसे निकालेंगे? आफ्टर डिडक्शन, after deducting tax allowable debt and non-cash expenses of 27.4, Thai company makes an annual cash investment of 243 million in non-current assets and working capital. It is estimated that its cash flows will grow 3% annually for the foreseeable future. Thai company's current cost of capital is 11%. Okay. Hmm. अभी इसका वैल्यूएशन
ईपीएस से नहीं निकालेंगे हम लोग। इसका कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे कैश फ्लोज से। कैश फ्लोज फॉर ताई कंपनी। कैश फ्लोज फॉर ताई कंपनी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पर्टिकुलर में सबसे पहला अमाउंट क्या है? पर्टिकुलर्स में सबसे पहले पीबीआईटी क्या है? 132 मिलियन। चलो, अब मुझे इस पे इंटरेस्ट लगाना है। अब मुझे इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 400 मिलियन, ठीक है। कहीं पर तो दिया होगा एक्चुअली। नहीं 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 नहीं। लेकिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लगता है इंटरेस्ट की वैल्यू एक्चुअली आनी तो चाहिए थी। पर उन्हें इंटरेस्ट का रेट ही नहीं दिया है यहाँ पे कहीं पे। मुझे दिख नहीं रहा है इंटरेस्ट का रेट। Opao and Thai pay corporation tax of 20%, and it's expected that the rate will not change. If the Opao company acquires Thai, it can be assumed that corporation tax is payable in the same year as the profit it is charged on. तो ये वाला हमको assumption, मतलब वो रिपोर्ट बनाने टाइम हमको assumptions वगैरह लिखने हैं, तो उस टाइम पे हमको काम आएगा। हम्म, नहीं यार, आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग अबाउट इंटरेस्ट, सो लेट अस फॉरगेट दैट फॉर नाउ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेता हूँ फिर। दिस माइनस दिस। टैक्स कितना बोला उन्होंने? 20% ना? माइनस 20%। एक्चुअली दे शुड हैव गिवन दिस यार, पता नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो अभी इसके बाद देखो, इन्होंने टैक्स लायबल डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस किए थे। टीएडी एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस अब हम ऐड बैक करेंगे। कितने ऐड बैक करेंगे? 7.4। टाई कंपनी में से ना एनुअल कैश इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स, हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं एनुअली। वी मेक इट एनुअली, ठीक है ना। -24.3 एनुअल। एक मिनट ना। एनुअल इन्वेस्टमेंट्स। चलो, कैश फ्लो विल ग्रो बाय 3%। हाँ ठीक है, ये वाला फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो विल ग्रो बाय 3% ना? नहीं, इन्होंने वो नहीं बोला है कौन से कैश फ्लोज। ठीक है, फ्री कैश फ्लोज ही रहेगा। सम they've got 108.7 as कैश फ्लोज। अब मैं इसको सबसे पहली बात तो करंट ईयर के लिए मैं इसको निकालूंगा। डिस्काउंटिंग कितना आता है? एक मिनट। डिस्काउंटिंग कितनी आती है इसकी? डिस्काउंटिंग रेट कितना है? 11%। 11% फॉर 1 ईयर। 0.901, 0.901। कैश फ्लोज आफ्टर डिस्काउंटिंग भी मुझे निकालना है फॉर सीएबल फ्यूचर के लिए। तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, फॉर फ्यूचर मैं ऐसे निकालूंगा। कैश फ्लोज 1 + जी।
तो ये आती है कैश फ्लोज। कैश फ्लोज इंटू 1+G, उन्होंने बोला है 3% से बढ़ेगा, तो मैंने इसको 3% से बढ़वा दिया। के ई माइनस जी कितना आता है, 11% माइनस 3%, 8%। दिस डिवाइडेड बाय दिस गिव्स राइज टू 1399.53। बस हमें ये गेस करना है एक्चुअली इसकी टोटल वैल्यूएशन जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए इसके बाद, डिस्काउंटिंग करने के बाद। बट आई थिंक ये सिर्फ एक ही साल के लिए दिया हुआ था, सो वी कैन अज्यूम कि ये करंट ईयर से ही फोर्सेबल फ्यूचर तक है। मे बी वी कैन अज्यूम दैट, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1400। एक्चुअली इसका राउंड अप कर लेता हूँ मैं। राउंड अप 1400। अभी इससे डेट वाला माइनस हो जाएगा एस्पेक्ट से। डेट का एस्पेक्ट कितना था, 400 का, सो लेट्स माइनस दैट। ये 1000 की। तो टोटल होता है 6000 का एक्चुअली वैल्यूएशन। एक बार चेक कर लेते हैं। 5000 and 1000 इज व्हाट दे हैव गॉट प्री एक्विजिशन, तो ठीक है, गुड, दिस इज गुड। इसकी एक्चुअली फिर जरूरत ही नहीं थी करंट ईयर की, है ना। ये वाली तो चीज की तो जरूरत ही नहीं थी। मैं सिर्फ फोर्सेबल फ्यूचर की जरूरत थी, और हाँ अगेन इंटरेस्ट था नहीं, सो दैट्स गुड। ठीक है, इंटरेस्ट था नहीं। अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड चीज, अले बट आफ्टर एक्विजिशन, ठीक है ना। अभी आफ्टर एक्विजिशन, हम आफ्टर एक्विजिशन करेंगे ना, सो अभी थिंग्स विल चेंज थोड़ा सा। इसको एक्चुअली कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि नाउ दिस ऑल थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। सॉरी, आंसर आ गया, ये रहा। If Opao company acquires Thai company, it is expected that the combined company sales revenue will be 735 in the first year, and the annual pre-tax profit margin on sales will be 15.4% for the foreseeable future. Pre-tax profit margin, अच्छा ठीक है। After the first year, sales revenue will grow by 5.02 every year for the next 3 years. चलो ठीक है, गुड। तो एक तो ये कैश फ्लो का ही है, दैट्स गुड। अच्छा, हमने ना पहले केस में इफ यू रिमेम्बर हमने वो डिस्काउंटिंग किया था, एंड नीचे हमने बिल्कुल भी डिस्काउंटिंग नहीं किया था। सो दैट इज बिकॉज ये सब चीजें ईयर जीरो में हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सबको वन ही कंसिडर कर करके चलते हैं। बट नाउ व्हेन वी विल मूव फॉरवर्ड, हमें एक्चुअली यहाँ पे इस इन सिचुएशंस में हमको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो को कंसिडर करके चलना है। मतलब हमको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को कंसिडर करके चलना है। फ्लो मेथड, सेल्स, प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन 7351। एक काम करता हूँ, मैं ना हर एक चीज के लिए वर्किंग नोट बना के रखता हूँ, क्योंकि ना मुझे राउंड अप करना है। आई वॉन्ट टू genuinely ट्राई दिस वन थिंग विच आई एम कंसर्न्ड अबाउट इन द एग्जाम। कंट्रोल C, कंट्रोल V। मुझे अभी हर एक चीज को कितना, इंटू 1.0502 ऐसा करना है ना। 1.502, हाँ, ऐसा करना है, ध्यान देना उस चीज पे। ये मैंने कर लिया। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, राउंड अप दिस कॉमा जीरो,
कि वो लोग का मैंने हमेशा आंसर देखा है, वो लोग कभी भी राउंड अप्स में ही लिखते हैं हमेशा हर एक चीज। ठीक है ना। अभी इसको कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V। परफेक्ट, राउंड अप में लिखा है मैंने सर एक चीज को। नाइस, नाइस, जेन्युइनली नाइस। थ्री, सॉरी, प्री टैक्स मार्जिन। ठीक है ना। अभी इसके बाद आफ्टर से द आफ्टर फर्स्ट ईयर, हाँ वो हो गया। इट कैन बी अज्यूम दैट द कंबाइंड कंपनीज एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंपनी एट द करंट ऑपरेशनल लेवल। सो सी, ये इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग पता है क्या होता है? इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग होता है कि हम जितना टैक्स अलाउेबल डेप नीचे ऐड बैक करने वाले हैं, उतना ही टैक्स अलाउेबल डेप इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें हमें माइनस करना है। सो इसका नेट इफेक्ट ही आएगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं देते ऐसा। However, in order to increase the sales revenues levels each year, the combined company will require additional investment of 109 million in the first year and 0.31 for every $1 increase in the revenue for the next 3 years. तो ये क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना। क्या आ गया वो? कंट्रोल C, थर्ड वन, दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या ना? इंक्रीमेंटल इंक्रीज, तो वो कितने का है दिस? इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेरा इतने का है, 0.31। इसका इंटू 0.31। इन्वेस्टमेंट राउंड अप ब्रैकेट ओपन, जीरो। राउंड अप लिखा है मैंने यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? देखो ना, हर एक छोटे से छोटा अमाउंट मतलब वो राउंड अप हो रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। राउंड लिख दूं क्या, सिर्फ राउंड? हाँ, ऐसा लिखूंगा तो कॉमा जीरो। हाँ, ये बेटर लग रहा है ना। अभी राउंड इज अ मच बेटर फॉर्मूला देन एनीथिंग एल्स। समझा? -109। ये अच्छा है, ये अच्छा है। इसको भी राउंड लिख देता हूँ, क्योंकि वरना फिर एक एक से ना हमेशा वो फिगर मैच नहीं करेगा रे कभी। ऐसा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ऐसा हो ना। अभी टैक्स, 0। ठीक है, राउंड भी हो गया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट 4 years इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंबाइंड कंपनीज फ्री कैश फ्लोज, ये ठीक है, ये तो देखो परपेचुइटी का है। कंबाइंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने दिया हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंबाइंड कंपनीज डेट टू इक्विटी लेवल will be maintained at 40 to 60 term in market value terms after the acquisition has taken place। तो ये ना बाय द वे ये पूरे कंबाइंड कंपनी का है, तो ये हमारे टोटल है, ठीक है ना। इट इज नॉट, क्या बोलते हैं वो, कैसे समझा मैं इसको, ये हमारा इंडिविजुअल कंपनी का नहीं है, इसके बाद हमको सिनर्जी मिलेगा, ऐसा है, ठीक है ना। अभी बोथ पीओ ओपाओ एंड ताई हैव कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट्स ऑफ 20%, तो मैंने चार्ज कर दिया। ठीक है ना।
डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 10%, ठीक है ना, हमारा 10% का है। तो 0.909 फर्स्ट ईयर में, 0.826 सेकेंड ईयर में, 0.751 थर्ड ईयर में, एंड 0.683 लास्ट ईयर में। तो अभी अच्छा, ये 0.683 लास्ट ईयर में, तो आता है 706.373। ये आ गया मेरा एनपीवी। मैं इसको बोलता हूँ एनपीवी, है नहीं ये मेरे रिटर्न्स ईयर 1 to 4। अब मुझे लगाना है परपेचुइटी। नाउ लेट अस फाइंड आउट द परपेचुइटी। तो जो हमने फॉर्मूला ऊपर लगाया था ना, वी हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। रिटर्न्स के लिए इसमें थोड़ा एक और स्टेप नीचे लेके रहता हूँ, डेट को निकाल देता हूँ। कैश फ्लोज हमारे लास्ट ईयर में कितने थे, ये ध्यान से देना। कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लो दे, फ्री कैश फ्लो मतलब डिस्काउंटिंग के पहले के कैश फ्लोज, ब्रैकेट ओपन, फोर्सेबल फ्यूचर का वो रेट कितना है, 2.4%। 2.024%। वो तो इतना 0.024%, के ई माइनस जी, 2.4%। तो ये हो गया। इधर अगेन, इधर भी राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया परपेचुइटी का फ्रॉम ईयर ईयर 5 ऑनवर्ड्स। लेकिन लेकिन इस सब चीजों के पहले है ना, ये हमको मिल गया। अभी इधर हमें बहुत सारे पहले के साल दिए गए थे, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डे, मतलब वो डिस्काउंटिंग। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग हम यूज करेंगे पिछले साल का, ईयर 4 का ही, 0.683 दिस इंटू दिस। अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, दिस इंटू दिस। तो आता है, अभी देखते हैं कितना आता है, इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन दिस, कॉमा 0.8494। तो फिर आते हैं रिटर्न्स परपेचुइटी। अरे यार, परपेचुइटी तो वो कितने हैं, 8494। तो हमारा टोटल कितना आता है बेसिकली, लेट्स राउंड इट अप अगेन, 1120। ये हमारा आता है टोटल वैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन हमें इन्होंने डेट और इक्विटी के बीच में कुछ प्रपोर्शन दिया हुआ था। इफ वी रिमेम्बर, इफ यू गाइस रिमेम्बर, डेट और इक्विटी के बीच में एक कोई तो प्रपोर्शन दिया गया था, कितना था, डेट टू इक्विटी लेवल विल बी मेंटेन्ड एट 40 to 60 टर्म्स। तो ये है 40%, ये है 60% ऑफ व्हाट, ऑफ दिस वैल्यू 6720। तो हमको मिलता है 67220 का इक्विटी। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे 112,220 पे ही लग रहा था इक्विटी। पर ये जब हमने सिंगल कंपनी का वैल्यूएशन निकाला था ना, तो उस टाइम पे मैंने देख लिया था कि ये 6720। तो एट दैट टाइम इट क्लिक मी कि अरे 1120 आंसर हो नहीं सकता। सो आई आई विल बी ऑनेस्ट इन दैट सेंस, कि ये 6720 मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है ना, मतलब ऐसा। तो वरना शायद जब मैं मतलब शायद मैं 11,200 पे आंसर शायद पीछे चेक करने चला जाता। बट ये मेरे को 620 पता चला अभी। हमारी
ठीक है। तो ऑफ द कंबाइंड कंपनी तो हमको मिल गया। भी इसके अंदर मैंने कुछ तो बोला है, एस्टिमेट द परसेंटेज गेन इन वैल्यूएशन, ये ठीक है। तो आई थिंक ये तो हो गया ना। तो इसको, इसके लिए शायद समरी बनाने की जरूरत ही नहीं है, शायद इसके लिए समरी की कोई जरूरत ही नहीं है। समरी, द combined company after acquisition, the combined company value after acquisition is millions, इक्विटी वैल्यूएशन एक्चुअली। तो ये येलो लाइन भी थोड़ी सी हट ही जाएगी। ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे हो गया ना, क्योंकि ये आंसर तो बराबर ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ना। ये देखो 6720 आ गया। तो ये राउंडिंग अप मेथड एक्चुअली मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है। बहुत बार मेरे आंसर्स ना मैच हो जाते हैं इससे, तो काफी मजा आ रहा है ये करने में। इनका कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा मत देखना, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे 1.1 कुछ तो किया है। कहाँ गया वो 1.1 रेस टू -4। सो बेसिकली इन्होंने डिस्काउंटिंग करके 0.683 लेके आए हैं एक तरीके से। वन देखो, -1, सॉरी 1.1 रेस टू -4। तो ये देखो 0.683 आ गया। सो ये ऐसा निकाले जाता है, ठीक है ना। इनका कैलकुलेशन मत ही देखना। तो ये भी हो गया, सी वर्ड भी हो गया। अब बचा सी का सेकंड, परसेंटेज गेन इन वैल्यूएशन ऑफ ईच ओपाओ शेयर एंड ताई कंपनी शेयर अंडर ईच ऑफ द कैश एंड शेयर फॉर शेयर एंड मिक्स्ड ऑफर। मिक्स्ड ऑफर बहुत खराब जाने वाला है मेरा मेरा पहला ही मिस्टेक होने वाला है मिक्स्ड ऑफर में। बट वी विल ट्राई बाकी के सारे चीजें। कैश, कैश पर शेयर, कैश पेमेंट फॉर 4.4, कैश पेमेंट 4.4 फॉर ईच टाई कंपनी शेयर। टाई कंपनी के पास शेयर कितने हैं, किधर तो लिखा था हमने। हाँ ये 2.63। तो आ गया 1157 का। फिर कैसे निकालते हैं हम लोग, हाँ ये देखो, याद आया। इनका वैल्यूएशन आया था 1000, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यूएशन बिफोर एक्विजिशन, और ये हमने निकाला है कैश ऑफर वैल्यूएशन। तो वो आया था 1000 का। तो इन्होंने अपना वैल्यूएशन कितना लगाया, 150। सो ये है इनका गेन। सो अभी गेन इन परसेंटेज फॉर्म कितना है इनको, 157.2 इज इक्वल टू 157.2 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यूएशन 1000। तो अभी मैं इसको परसेंटेज, परसेंटाइल, ये मुझे याद नहीं रहेगा, छोड़ो छोड़ो, एक मिनट। इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, मतलब आई डोंट नो इफ इस फॉर्म में लिखना चलेगा क्या। फिर ठीक है, राउंड अप थोड़ा सा कर लेंगे यार। 15.72 एक बार पेपर सबमिट होने से पहले मैं एक बार चेक कर लूंगा सारे आंसर, जाने दो। अच्छा भाई, तभी ये किसका है, हाँ ये तो मैंने वो लिखा ही नहीं। दिस इज, हाँ ये इधर ही लिख देता हूँ मैं, दिस इज फॉर ताई कंपनी, ठीक है ना। ये है ताई कंपनी का। नाउ वी कम टू ओपाओ। ओपाओ का क्या कैसा निकलेगा, टोटल सिनर्जी, टोटल
सिनर्जी मेरे को मिली कितनी की। हाँ वो तो मैंने निकाला ही नहीं ना। एक मिनट हाँ। तो वो कैसे निकलेगा। ऊपर का ही हम ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन 1000 की आई थी बाय द वे। ठीक है ना, ये उसकी 1000 की आई थी। हमको अभी टोटल वैल्यूएशन कितना मिला, उनका टोटल कंबाइंड वैल्यू हमको मिला 6720। तो फिर हमको बेसिकली सिनर्जी कितने की मिली। सिनर्जी हमको मिली 6720 माइनस 5000 माइनस 1000, तो हमको मिली 720। अरे मैं हमेशा कंट्रोल एन क्यों दबाता हूँ हाँ, तो टोटल सिनर्जी हमको मिली 720 की। अभी उसमें से हमने ताय को कितना दिया, 157 गिवन टू ताय, 1527। फिर ये आ जाता है लेफ्ट फॉर ओपाओ, लेफ्ट फॉर ओपाओ। तो वो इतना बच गया। तो ये हो गया हमारा गेन। अभी गेन इन परसेंटेज फॉर्म कितना आएगा फिर। अब अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये गेन मुझे सिनर्जी से डिवाइड करना है कि मेरे ओपाओ के वैल्यूएशन में से। मुझे ऐसा लगता है ओपाओ के वैल्यूएशन में से फिलहाल मैं कर लेता हूँ, वरना बहुत ज्यादा आ जाएगा एक्चुअली गेन दूसरी कंपनी को, है ना। 11.256 परसेंटाइल ओपाओ कंपनी। तो ये हो गया मेरा कैश ऑफर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा कैश ऑफर, क्योंकि मैं ओपाओ के बारे में थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि वो डिवाइड से सिनर्जी से होता है या किससे होता है। हाँ बराबर है, देखो 11.2। तो अगेन वो डिवाइड होता है, वो जो डिवाइड होता है वैल्यू से, वो है हमारी क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन 5000 से ही डिवाइड होता है, ओल्ड वैल्यूएशन से ही डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा कैश ऑफर 15.72, विच दे हैव गॉट 15.8, विच इज फाइन। ठीक है, उन्होंने उनका मेथड थोड़ा अलग है। उनका मेथड ऐसा है कि 4.4 माइनस 5.8 डिवाइड बाय 3.8, सॉरी माइनस 3.8 डिवाइड बाय 3.8। उनका मेथड थोड़ा अलग है, हमारा मेथड थोड़ा अलग है, विच इज फाइन। अभी सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है हमारा, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस दौरान हम क्या करते हैं शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर के टाइम पे क्या कर रहे हैं हम, थ्रू अ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज वेयर अ नंबर ऑफ ताई कंपनी शेयर्स आर एक्सचेंज फॉर अ नंबर ऑफ ओपाओ कंपनी शेयर्स, such that 55% of the additional value created from acquisition is allocated to Thai shareholders, and remaining 44.5% of the additional value is allocated to Opao company shareholders. है, तो मेरे को डायरेक्टली सिनर्जी मिल जाएगी, मतलब मैं, मुझे तो गेन ही निकालना है ना। Estimate the percentile gain in the value of each Opao company share and Thai company share. तो आई एम नॉट गेटिंग इट, इसको तो मैं इजिली कर लूंगा, मतलब इसमें कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर। मतलब ये मेरी सिनर्जी, आई थिंक ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, ये मेरी सिनर्जी है 720। इसमें का 55.5% और 100% माइनस 55.5%, ये दोनों चीजें जो है मैं बांट देता हूँ। Through a share for share exchange, where a number of Thai company shares are exchanged for Opao shares, such that 55%, ये देखो, such that 55% of the additional value created, मतलब synergy from the acquisition is allocated to Thai shareholders, and बाकी का 44.5% is allocated to Opao shareholders. It can be, लेकिन इतना सिंपल होगा ऐसा लग नहीं रहा है, तो ठीक है। Thai कंपनी, ओपाओ कंपनी,
अभी परसेंटाइल गेन कितना हुआ हमें, ये देखो, 399.6 डिवाइड बाय हमारा ओरिजिनल वैल्यूएशन आएगा कितना था, 1,000 एंड 324.4 डिवाइडेड बाय 5,000, तो ये इतना गेन इन परसेंटेज, एंड गेन इन परसेंटेज, इन दोनों को मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये आता है 39.96%, और ये आता है 6.4%। चेक कर लेते हैं एक बार, आई एम नॉट सो श्योर बट चेक कर लेते हैं। ये देखो, टाई कंपनी को मिला है 40% और इसको मिला है 64%, सॉरी 6.4%। हमको भी सेम मिला है। हाँ, मैंने यहाँ पे मतलब वो राउंड ऑफ नहीं किया है, 39.96 को छोड़, ठीक है 40 मैं कर देता हूँ। बट हाँ, अगेन मतलब, तो ये सब इन्होंने क्यों किया, मतलब इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिस इज ऑल जस्ट, इफ आई कैन से दिस बुलशिट, क्योंकि इन्होंने वो चीज पूछी ही नहीं है क्वेश्चन में भी। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। मिक्स्ड ऑफर देन, थर्ड, मिक्स्ड ऑफर। Through mixed offer of a cash payment of 2.09 per share and one Opao share for each Thai share, it is estimated that Opao share price will be 2.6 per share when such a mixed offer is made. मिक्स्ड ऑफर के टाइम पे एक तुमको कैश ऑफर करना, कैश ऑफर फटाफट खत्म कर डालते हैं। 2.09 पर शेयर ना, कैश ऑफर, इसमें कैश ऑफर, कैश पर शेयर, तो मिक्स्ड ऑफर एंड कैश पेमेंट पर शेयर, ओपाओ कंपनी शेयर फॉर ताई, नंबर ऑफ शेयर्स 9 पर शेयर, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, ओपाओ कंपनी, ताई कंपनी, इसमें ओपाओ कंपनी शेयर प्राइस, वन ओपाओ शेयर फॉर ईच ताई शेयर, वन ओपाओ शेयर फॉर ईच ताई शेयर, ठीक है। अब वो कितने शेयर, मुझे 263 दे रहे हैं ना, मैं तो पूरा ही एक्वायर कर रहा हूँ। इट एस्टिमेटेड ओपाओ कंपनी का शेयर प्राइस इज 2.6 पर शेयर, तो दिस इनटू, अरे मैं क्यों इतना, हाँ ठीक है, अभी मैं चालू कर देता तो 263 शेयर्स बेसिकली मैं दे रहा हूँ उसको, ओपाओ शेयर्स, और ओपाओ का शेयर प्राइस कितना है, विच इज 2.6, तो आता है कितना, दिस, सो कैश ऑफर से मुझे मिला इतना, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज से मुझे मिला इतना, टोटल ताई कंपनी वैल्यूएशन, ठीक है, अभी टोटल ताई कंपनी वैल्यूएशन इन मिक्स्ड ऑफर, ठीक है ना, इन मिक्स्ड ऑफर, और हमने ऊपर भी किधर से किया था एक्चुअल वैल्यूएशन, तो ये आ जाता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे, सो दैट एक्चुअल वैल्यूएशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। गेन मिला 233.47 बराबर, ये जो है ना ये चेंज हो जाएगा, हाँ ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1,000 एक्चुअल वैल्यूएशन डिवाइड बाई गेन, परफेक्ट, 23.347% बराबर, परफेक्ट है। तो ये हो गया मेरे टाई कंपनी का गेन, एंड देन आता है, हाँ अब आता है मेरे इस वाले कंपनी का गेन।
ये रही कंट्रोल सी, ओपाओ कंपनी, कंट्रोल वी। टोटल सिनर्जी है कितनी मेरी? टोटल सिनर्जी है 720 की, उसमें का ताय ले गया 233.47, गेन बचा 48.63 का। तो अभी 486.53 डिवाइड बाय इसका कहाँ गया वैल्यूएशन, 5000 था, तो आ गया 9.7306। तो ये आ गया। चेक कर लेते हैं मिक्स्ड ऑफर हमारी। मिक्स्ड ऑफर में 23.4%, परफेक्ट, 23.35 ठीक है, और आ गया 9.7% परफेक्ट। तो हो गया, नाइस, गुड। अभी इसमें हमने एस्टिमेट किया है, इवेल्युएट द लाइकली रिएक्शन ऑफ ओपाओ कंपनीज एंड थाई कंपनी शेयर होल्डर्स टू द एक्विजिशन ऑफर्स। अभी हमें ना बनानी है, मतलब वो रिपोर्ट बनानी है, तो सबसे पहले ना फाइल कंप्यूटिंग दिस रिपोर्ट हम ऐसा लिखेंगे, while computing this report there were various assumptions first of all taken into consideration। एक मिनट ना, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट एक लाइन पढ़ी, आई एम सो सॉरी, कि ये प्रीमियम ऑफ 15% एंड 40% प्रीवियसली, similar acquisitions in food manufacturing industry have normally attracted share price premium of 15% and 40% previously। बिटवीन 15 to 40% का हमें मिल रहा है। तो देखो एक मिनट ना, देखो हमारा, ये हमारे लिए एक्चुअली एक हिंट है रिपोर्ट बनाने टाइम। सबसे पहले मैं वो हिंट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले हम अजम्पशंस बता देते हैं। अजम्पशंस क्या है कि बो एंड ताई कंपनी पे कॉर्पोरेशन टैक्स रेट ये 2% तो ठीक है, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस रेट विल नॉट चेंज when Opao company acquires Thai company। Secondly, we have assumed annual rate of 20%, whereas it can be tax rates can be based on tax slab rates of UK such as 20%, 40% and 45% respectively। Thirdly, corporation tax is payable in the same year as that of the profits can be an assumption that has been taken into consideration। अभी और क्या क्या assumptions हो सकते हैं? कैश फ्लोज, ये देखो हमने वैल्यूएशन कैश फ्लो मेथड से निकाली है, लेकिन वैल्यूएशन कैन बी एज पर द नेट एसेट मेथड, डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, ये सब हमने कंसिडर किया था कि नहीं, वो भी हमको निकालना चाहिए। ताई कंपनी का वैल्यूएशन वी हैव रिमूव्ड एज पर द कैश फ्लो मेथड एंड वी हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द डिस्काउंटिंग रेट। और क्या हो सकता है, हमने देखो, हमने बहुत सारा असम्पशंस क्रिएट किया कि ये न्यू इनोवेशंस होंगे, लार्ज मार्केट शेयर मिलेगा, ये सब हमारे सिनर्जी के असम्पशंस है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनीज कॉस्ट, मतलब वो डेट टू इक्विटी रेशियो विल बी मेंटेन, ये भी लिख देंगे। नाउ व्हाई व्हाई डिड आई राइट ऑल ऑफ दिस डाउन, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स ऊपर से कॉपी पेस्टेड मिल रहे हैं, एंड फिर बस एक एक दो 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 लाइंस ही ऐड करनी है, तो आंसर भी मतलब बड़ा दिखेगा, मतलब वो रिपोर्ट में, बिकॉज ये जो 10 मार्क्स के कम्युनिकेशन वगैरह है ना, ये शायद इसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इसके लिए मैंने बोले। नाउ वी कम डाउन टू इवेल्युएट द लाइकली रिएक्शन ऑफ ओपाओ कंपनी शेयर होल्डर्स एंड ताई कंपनी शेयर होल्डर्स। ओपाओ कंपनी के शेयर होल्डर्स पे सिर्फ ना सबसे पहले आते हैं। ओपाओ कंपनी का सबसे पहले हम लोग ये सब कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे कि ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट से दो कंपनी का, अभी सिर्फ फूड मैन्युफैक्चरिंग और इसके ऊपर अभी फोकस कर रही है। एंड देन वी विल कम डाउन टू सिमिलर acquisitions in food manufacturing industry have normally attracted share price premium of 15 to 40%। so whatever whatever offer that the company will make to them will be based upon this assumption, or at least this much benefit should be gained। and if that consideration is done by OPAO, then we can see that cash offer is only giving 11.26%, share for share exchange is giving 6.4%, and this giving अच्छा 9.73%। so none of them are giving the actual benefits। ओ भाई साहब, ठीक है ना? so that means clearly that ओपाओ कंपनी इज ओवर वैल्यूइंग ताई कंपनी, ये हम बोल देंगे। दिस कैन बी रिड्यूस्ड
by either changing the proportion of in the share for share exchange or by reducing the cash payment offer made in mixed and this offer, ऐसा कुछ बोल देंगे। ठीक है। फिर और क्या बोल सकते हैं। एक्चुअली करंटली ट्रेडिंग है 2.5 ईच, तो हम लोग इसको 2.6 पे क्यों दे रहे हैं। अच्छा, विल बिकम ओके। हम्म। अगेन अजम्पशन, एस्टिमेट किया कि 2.6 हो जाएगा, लेकिन होगा कि नहीं वो क्या पता, है ना। तो ये भी तो मतलब ये भी हम लोग वो लिख सकते हैं। ओप्पो कंपनी के शेयर होल्डर शायद नाखुश होंगे बिकॉज दे विल टेक इन टू कंसिडरेशन द इंडस्ट्री एवरेजेस 100%। ठीक है ना। However, if there are other benefits such as increased cash reserves or other cost synergies which can be seen in the upcoming future, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये सब चीजें बोली हुई हैं, such invisible मतलब benefits, then those can be taken into consideration, and if such benefits exist, then the board of directors should communicate the same to the shareholders of Opao company, ये हम बोल देंगे। फिर आता है टाई कंपनी के शेयर होल्डर्स। अब एक्चुअली टाई कंपनी शेयर होल्डर्स विल बी मोर कीन ऑन द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर बिकॉज उनको 40% गेन मिल रहा है। however if even if other two benefits are being taken into consideration, then we can clearly see that 15.72 and 23.35% are being given, which helps eventually Thai company in क्या बोलते हैं which which actually estimates the valuation of Thai company pretty well, because in its foreseeable future of Thai company itself, it had valued itself as 1000, मतलब इनका foreseeable future लेके भी आंसर 1000 ही आ रहा था, whereas हमारे कैलकुलेशन में हमने इनको हमेशा 1000 से ऊपर की प्राइस ही दी है, ऐसा। तो टाई कंपनी के शेयर बेसिकली खुश होंगे ये मैं बोलना चाहता हूँ। और अभी रिपोर्ट में और क्या क्या लिख सकते हैं। एनपीवी तो पॉजिटिव है, या फिर वो रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, ये लिख सकते हैं। अदर कॉस्ट बेनिफिट में सिनर्जीज में हम लोग शायद एक मोनोपोली पोजीशन में आने की ट्राई कर सकते हैं ओवर द इयर्स। देखो टाई कंपनी इज वेरी फिट एंड वेरी वेल इन इट्स ओन पोर्टफोलियो लीडिंग टू क्रॉस सेलिंग, तो देखो ये यहाँ पे क्रॉस सेलिंग हो रहा है। एक मिनट, इन्वॉल्व टाई कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व इन फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो एक सेकंड ना। तो यहाँ पे टाई तो अनलिस्टेड है, सो बीइंग एक्वायर्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी कैन हेल्प देम गेन द लिस्टिंग एंड कैन इंक्रीज देयर शेयर प्राइसेस इवेंचुअली। ठीक है ना। शेयर होल्डर्स शायद थोड़े नाखुश होंगे कि व्हाई वी आर एक्वायरिंग एन अनलिस्टेड कंपनी, बट इट विल गिव टाई कंपनी शेयर होल्डर्स द बेनिफिट कि देखो टाई कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होंगे या इन्वेस्टर्स, देखो टाई का कंपनी के पास शेयर होल्डर्स नहीं है, टाई कंपनी के पास इन्वेस्टर्स है, बिकॉज टाई कंपनी इज unlisted company. So Thai companies investors will become eventual shareholders because of the merger or because of the acquisition, ये हम बोल सकते हैं। तो Thai company के shareholders तो खुश हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने नीचे दिया था सिमिलर एक्विजिशन इन फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैव नॉर्मली अट्रैक्टेड अ शेयर प्राइस प्रीमियम बिटवीन 15 to 40%। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमें कौन से पर्सपेक्टिव से दे मतलब देखना है, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ओपाओ कंपनी भी फूड फूड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये देखो, और ताई भी कर रहा है। और क्योंकि अगर ताई कर रहा है तो ताई का तो हमेशा 15% के ऊपर ही आ रहा है, सो उसको तो बेनिफिट ही है ना। सो लेट्स सी नाउ, थ्योरी पढ़ लेते हैं अभी इसका। वेयर इज द थ्योरी। थ्योरी, द report provides an estimate of the individual value created of Opayo company where to acquire Thai company and the gain for each company's shareholders based on the cash offer, a share for share offer and a mixed offer. It evaluates the likely reaction of the two companies shareholders to each payment method. हम्म, तो समरी दिया हुआ है, ठीक है। लाइकली रिएक्शन इन्होंने बहुत छोटा लिखा है, इन्होंने अजम्पशंस वगैरह भी नहीं लिखे हैं। आई एम सेइंग लिखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज एक तो ऊपर से सीधा सीधा कॉपी पेस्टेड अजम्पशंस मिल रहे हैं, सो दैट इज लाइक अ बोनस। Thai company shareholders are likely to consider all the offers made because they all fall, देखा, वो सारे प्रीमियम के रेंज में आते हैं।
फिर देखो इन्होंने क्या बोला है, कैश ऑफर लोअर एंड रेंज में आता है, शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज और टॉप पे आता है, और मिक्स्ड ऑफर इज इन बिटवीन, ऐसा बोला हुआ है। इट इज लाइकली दैट टाई कंपनी शेयर होल्डर्स विल बी मोर अट्रैक्टेड फॉर शेयर, सेम चीज इन्होंने बोली है। However, it is offer reliant on the fact that expected synergy benefits will be realized, and Thai company will probably need to analyze the likelihood of this. Cash payment, although much lower, gives a certain certainty of return. Mixed offer provides some of the certainty of cash payment, but also offers a higher return compared to cash offer. This return is roughly in the middle of premium range. It may therefore provide to be the better option for Thai company shareholders. Opao company shareholders benefit less from the acquisition. ओपाओ कंपनी शेयरहोल्डर्स बेनिफिट लेस फ्रॉम द एक्विजिशन, बराबर है, क्योंकि उनको in each case they are getting less than the additional value created of 12% with cash payment। तो इन्होंने वापस एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना हमारी वाट लग रही है। नेवरदलेस द with this option cash is retained within Opao company। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज ऑफर से गिव्स लेस रिटर्न। शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज में देखो इन्होंने क्या लिखा है कि शेयर फॉर शेयर से भले ही वो लेस रिटर्न आ रहा है, लेकिन नेवरदलेस विद दिस ऑप्शन cash is retained within the Opao company and can be used for other value creating projects। Opao company shareholders may also prefer the mixed offer because the return they are expecting to receive is between cash and share for share offers। Also, less cash resources are used compared to cash offer। एक मिनट क्या? Also, less cash resources are used compared to cash offer, and they still benefit from the significant proportion of the additional value created। नहीं, ये थोड़ा समझा नहीं। अच्छा, मिक्स्ड ऑफर, ओके ओके ओके, मिक्स्ड ऑफर की वजह से लेस कैश रिसोर्सेज आर यूज्ड कंपेयर टू द कैश ऑफर, कि कैश ऑफर में 4.4 जितना कैश जा रहा है, और यहाँ पे सिर्फ 2.09 जितना कैश जा रहा है। सो मिक्स्ड ऑफर में मैं बेसिकली कहाँ गया मिक्स्ड ऑफर? हाँ, मिक्स्ड ऑफर में बेसिकली, हाँ हाँ हाँ, ये रहा। मिक्स्ड ऑफर में 549.67 जितना कैश जा रहा है, वेराज कैश ऑफर में 1157 जितना कैश जा रहा है, ऐसा बोलना चाहते हैं। ठीक है। Conclusion: based on the benefits accruing to both sets of shareholders, it is not possible to conclusively say that one method of acquisition payment would be acceptable to both sets of shareholders। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, because mutually exclusive cash and share offers were not possible, a mixed offer was created which would provide equal benefits, and ऐसा हम बोल सकते हैं। However, both sets of shareholders may be persuaded that the mixed offer provides a reasonable compromise between the whole cash and the whole share for share prices, given the synergy benefits are shared, even if not equally. Both companies' share prices should increase if the acquisition proceeds, as long as the estimates when estimating the valuations are reasonably accurate। Report compiled by, अच्छा, और डेट। ओके, तो ये हर जगह पे लिखना है क्या ऐसे, वो रिपोर्ट के पहले? चेक कर लेना जरा, एक और कोई तो मतलब वो रिपोर्ट चेक कर लेना। नहीं, इधर नहीं लिखा है वैसा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये तो लिखना ही है, रिपोर्ट फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसा चलेगा ना?